हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो जो है यूनियन बजट 2023-24 के लिए। आई एम गोइंग टू कवर द की हाईलाइट ऑफ द बजट विच इज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन. So let's begin. So let us understand what we are going to cover in this budget. So broadly, I have tried to cover all the things which are important to know. So in this video, yes, definitely we are going to cover vision of the budget priorities, जो things हैं जिसके ऊपर focus करने वाली है government to achieve the vision. The coverage under budget priorities, that is Saptarishi, key changes for financial sector, announcements for gift city, direct tax, that is for personal tax, and other important changes. So friends, before starting, the key changes, let us just understand the theme of the budget. So the theme of the budget is Amrit Kal. So this terminology has been used in the budget for many times. So basically, what is the meaning of Amrit Kal? So as we know, recently we have celebrated 75 years, 5 years of independence. So the government is considering this period that up from 75 years to up to 100 years, it's a Amrit Kal or the golden period for the Indian economy, because as the finance minister mentioned their budget speech, that still many challenges like COVID or the Ukraine war and the inflation, still the Indian economies has been doing comparatively better uh, against the emerging or developing economies. So Amrit Kaal is the theme where the government is going to present this budget. Vision for Amrit Kaal, that is 2047. So in the budget speech, the vision is read as under technology driven and knowledge based economy with strong public finance and a robust financial sector. तो जो विजन है, इस विजन में टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड साथ में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. सो द विजन अपने आप में एक द इंटेंशन गवर्नमेंट का दिखाता है कि गवर्नमेंट किस पे काम करने वाली है. ओके, सो स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर. तो इन सारी चीजों के आसपास ये बजट घूमता हुआ दिखाई देगा. To achieve the vision, so in the budget speech, there are three things which will be focused to achieve the vision. So, what is those? What are those three things? First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspiration. And second is providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. So these are the three things which has to be focused or which will be focused to achieve the vision of the budget. Now, again another terminology or new term which is coined in this budget is the Saptarishi. So in the budget, there are budget priorities, and these priorities are classified under 7 categories. So all put together, they have been called as Saptarishi. So first one is inclusive development. Second is reaching the last mile. Third is infrastructure and investment. Fourth is unleashing the potential. Fifth is green growth. Sixth is youth power. Seventh is फाइनेंशियल सेक्टर. तो ये जो बजट की 7 थीम है, इनके आसपास ही पूरा बजट है. और इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लाई हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो आपके सामने इस बजट में थोड़ा उनको ब्रॉडली कवर किया जाए. सो दीज 7 प्रायोरिटीज आर कॉल्ड एज सप्तऋषि. मेजर अनाउंसमेंट्स अंडर सप्तऋषि. तो अभी जो सप्तऋषि है उसमें
फाइनेंशियल सेक्टर को मैंने सेपरेटली रखा बिकॉज आई मेक द वीडियो फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर. सो देर विल बी सेपरेट स्लाइड फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. बट अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना. तो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस ईयर को दिस मिलेट ईयर करके इसको घोषणा की थी. सो द श्री अन्ना, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ग्लोबल हब के लिए इसको ये किया जो हैदराबाद में बेस्ड होगा. ओके. देन एग्रीकल्चर क्रेडिट. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है अभी इंक्रीज करके उसको 20 लाख रुपीस कर दिया गया है. देन पीएम मत्स्य संपदा with targeted investment of rupees 6,000 crore. So this is something new for the fishermen. तो यहाँ पे एक नई मत्स्य संपदा करके स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें गवर्नमेंट 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी. देन फॉर द एजुकेशन सेक्टर देर विल बी टीचर्स ट्रेनिंग institute will be opened in the selected district. So this is there mentioned. एंड उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर में है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, देयर द गवर्नमेंट विल द पोस्ट द 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल सर्विंग 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी गुजरात में एक इस तरह का ट्राइबल स्कूल है और अभी मध्य प्रदेश में भी एक ऑलरेडी एक ट्रिपल पी दैट इज पीपीपी मॉडल पे एक रेसिडेंशियल स्कूल इसी थीम पे भोपाल के पास सीहोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ओपन हो रहा है. सो गवर्नमेंट ने इस चीज को इम्पोर्टेंस दिया है एंड इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है. देन the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over INR 79,000 crore. तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की इस बार जो प्रायोरिटीज है वो है सबके लिए घर. अदर स्कीम थी जैसे मनरेगा है, वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, या फिर किसान सम्मान निधि, उसके लिए भी कोई एडिशनल प्रोविजन नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ने जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना, उसके लिए 79,000 करोड़ का बजट प्रपोज किया है. एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर है इट वाज समवेयर अराउंड 60,000 और 65,000 करोड़, बट उसमें से अराउंड 5-10,000 कम खर्च किया था. तो दैट कम खर्च होने के बाद भी इस बार गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है आवास. So that's why the government has proposed to enhance the budget by rupees 79,000 crore for the PM आवास योजना. इसके बाद इसी से लिंक्ड है एक, जैसे जो RIDF होता है, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो इस तरह के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एंड इट विल बी मैनेज बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक. एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने अलोकेशन ऑफ रुपीज 10,000 करोड़ पर एनम का अलोकेशन किया है. उसके बाद a capital outlay of rupees 2.4 lakh crore has been provided for railway. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2.4 लाख करोड़ रेलवे के लिए प्रोवाइड किया है. इन कंटिन्यूशन फिर उसके बाद मिशन कर्मयोगी अनाउंस किया है. फिर उसके बाद में फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया. So, 3 centers of excellence artificial intelligence will be set up in the top educational institution. उसके बाद है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग. तो अगेन गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, और जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ओपन करेगी जिसके माध्यम से ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट किया जाए. प्लस जो यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, देर आर रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस एंड मिनिमाइज दोज डाटा रिडंडेंसी. प्लस the focus is to improve or ease of doing business. Then there will be a common business identifier. So इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, for the purpose of business establishment required to have a permanent account number, the PAN will be used as a common business identifier for all digital system of specified government agency. तो अभी क्या होता है कि जो existing
जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो कंपनीज हैं उन लोगों को पैन चाहिए होता है, GSTIN नंबर चाहिए होता है, फिर EFPO का अलग से नंबर होता है. So now for all the government agency or specified agency, the permanent account number will be the common business identifier. Then PM Pranam, that PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth will be launched to incentivize state and union territories to promote alternative fertilizer and balanced use of chemical fertilizer. So this is another scheme. Then उसके बाद गोवर्धन स्कीम. So गवर्नमेंट अभी जो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि देयर विल बी अप्रॉक्स 500 दिस गोवर्धन स्कीम जो बायोगैस प्लांट कंट्री में यूज किया सो दैट जो waste है that can be utilized properly and we can use in the best effective manner. Then 500 new waste to wealth plants under Govardhan, so that I have already mentioned, and the investment would be of rupees 10,000 crore. So government ने इस चीज को importance दिया है and they have made a budget of rupees 10,000 crore. Now this is important and वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो मेजर अनाउंसमेंट हैं वो इस तरह से. पहली, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नो योर कस्टमर KYC प्रोसेस. सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट दे विल टेक्स some efforts to simplify the KYC process. Then credit guarantee for MSME. The revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crore in corpus. So this scheme will be effective, and the 9,000 crore means it will be uh, you know it will be enabling additional of rupees 2 lakh crore guaranteed credit for MSME, and the cost of credit will be reduced about 1%. So अभी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है वहां पे जो बोरोर्स होते हैं उनको cost, they are supposed to pay certain amount of as a commission or cost to the credit guarantor. So this cost is also proposed to be reduced about 1%, and with the help of this additional 9,000 crore, these credit backed guarantee backed credit will be available to the extent of rupees 2 lakh crore for the MSME sector. इसके बाद नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री. सो अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजिकली अनाउंसमेंट दैट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, इसको गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको ईज करने वाली है इन कंसल्टेशन विथ दिस IRDA and RBI, SEBI. So the government has mentioned that they will further streamline these regulation, improving the governance and investor protection in the banking sector. Then reclaiming the shares and dividends. So friends, अभी जैसे हमें पता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर जो अनक्लेम डिविडेंड होता है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है. बट नाउ द गवर्नमेंट इस बजट में जो अनाउंस किया उन्होंने कि अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट जहाँ पे जो अनक्लेम डिविडेंड है जो उसको वापस क्लेम किया जा सकता है. ओके. इसके बाद है आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र. सो द गवर्नमेंट फॉर द दिस गिविंग द ऑनर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर ladies in the freedom or in the economy, the government has launched this specially आजादी महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, एंड इनका टेनर 2 साल का होगा. सो इट इज लाइक NSC, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. देन फाइनेंशियल सेक्टर में गिफ्ट सिटी. सो गवर्नमेंट ने एक बंडल दिया है गिफ्ट सिटी को. जो बहुत सारे प्रोविजन हैं, जो 6-7 प्रोविजन स्पेशली गिफ्ट सिटी के लिए अनाउंस किए हैं. बिकॉज अभी गिफ्ट सिटी देखा जाए तो एक तरह से अपकमिंग टेरिटरी है, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इसमें मैक्सिमम इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें फैसिलिटी और इसको फुल्ली फंक्शनल किया जाए. तो इसमें फर्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर SEZ, दैट इज सेज एक्ट टू IPSCA टू अवॉइड डुअल रेगुलेशन. सो अभी क्या हो रहा है, देयर आर सर्टेन कैटेगरी जहाँ पे डुअल रेगुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, लाइक जहाँ पे RBI भी होती है, जहाँ पे ये एडा भी होती है, प्लस से भी होती है. तो SEZ में अमेंडमेंट किए जाएंगे और करेगी गवर्नमेंट, जहाँ पे IPSCA
डिसीजन जो रेगुलेशन होगी या फिर वहां पे डुप्लीकेशन अवॉइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद है द सेटिंग अप अ सिंगल विंडो आईटी सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम इफ्सका, एसईजेड अथॉरिटी, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी एंड इरडाई। सो अगेन दिस गवर्नमेंट जो फोकस है उनका फुल फोकस इस बात पे है कि मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए। सो दैट्स व्हाई दे आर proposing to set up a single window IT system. Okay, then permitting acquisition financing by IFSC banking unit of foreign banks. So it means now the IFSC unit of the foreign bank, they will be allowed to finance the acquisition financing. So it will be taken care by the IFSC units of foreign banks. So this is especially for the foreign bank. Okay. इसके बाद है establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. So friends, again the Exim Bank, that is Indian Exim Bank, they are into process of setting a factoring unit in Gift City Gandhinagar, and as per this budget announcement, and they are already into the process. Then amending IPSCA Act for statutory provision for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under SEJ Act. So that already mentioned, because government का फोकस है कि कहीं पे आपको डुप्लीकेशन, जितना भी रिडंडेंसी उसको अवॉइड किया जा सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन रिकॉग्नाइजिंग ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि आपको जो पी नोट्स होते हैं उनको अलाउ किया है इन्वेस्टमेंट इन गिफ्ट सिटी। तो थोड़ा सा पी नोट्स या पी नोट्स का आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये नोट्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स काइंड ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जिस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो पता होता कि कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, बट अल्टीमेटली इनके ओनर कौन होते हैं ये पता नहीं होता है। ओके, सो इस तरह की अरेंजमेंट टू प्रमोट द एफडीआई और फॉरेन करेंसी इन द गिफ्ट सिटी, तो गवर्नमेंट ने ये इसको अलाउ किया है स्पेशली इन गिफ्ट सिटी। हावेवर डोमेस्टिक मार्केट में ये सेबी के इसको एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रूमेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। Then, for countries looking for digital continuity solution, facilitation of setting up of their data embassies in Gift City. तो again, अगर जहाँ पे जो digital continuation solution के लिए, तो the government has allowed these countries to set up their data embassies in Gift City. उसके बाद extension of period tax benefit to funds relocating to IFSC Gift City till 31st March 2025. So if there are funds they are relocating to Gift City, then there will be tax holiday or tax benefit whatever the government has already announced. तो अगर वो 31st March 2025 तक करते हैं, then the tax holiday or tax benefit will be there for those entities. Then the best part, or the most awaited part of the budget and this presentation is the income tax. So though there is nothing for the the जो ओल्ड रिजीम है, जो इंडिविजुअल के लिए जो ओल्ड रिजीम होती है वहां पे गवर्नमेंट ने उसको टच भी नहीं किया है, लेकिन देर आर अदर की हाईलाइट्स इन द न्यू tax regime, and there are other major announcement जिसको I am trying to cover in this slide. Okay, so first is presumptive taxation. So this limit has been enhanced from 3 crore and 75 lakh for micro enterprise and certain professional categories. Okay, so earlier this limit was limited, but this time it is enhanced to INR 3 करोड़ एंड 75 लाख। सो प्रिजेंटिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आपका टर्नओवर अगर इस लिमिट के अंदर है, तो देयर विल बी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इनकम टैक्स, जहां पे आपको स्लैब फॉलो नहीं करना, सिंपली आप कैलकुलेट करो और उससे आप इनकम टैक्स निकालो और आप फाइल कर सकते हो। देन एक्सटेंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप्स फ्रॉम March 31st 2023 टू March 31st 2024। तो गवर्नमेंट ने एक साल के लिए और स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट है वो बढ़ा दिया है कि अगर आपका जो इनकॉर्पोरेशन अगर मार्च 2024 तक भी होता तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। देन इन द न्यू टैक्स रिजीम, ओके, सो
जैसे मैंने पहले बोला था कि न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे चेंजेस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है न्यू टैक्स रिजिम को, बिकॉज ये 2020 में ये आई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए इस बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट की है। सो फर्स्ट है कि पहले जो लिमिट 5 लाख तक की होती थी टैक्स नहीं भरने के लिए, और टैक्स नाउ दिस द लिमिट हैज़ बीन इनहांस्ड टू 7 लाख रुपीज़। तो अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर 7 लाख रुपीज़ है इन न्यू टैक्स रिजीम, तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ INR 52,500 इन न्यू टैक्स रिजिम। तो अभी जैसे मैं पता था कि जो न्यू टैक्स रिजिम है वहां पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 का बेनिफिट दिया है अभी। देन टू रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज फ्रॉम 37% टू 25%। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, बट देखा जाए तो इस कैटेगरी में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ये जो 37% जो सरचार्ज की बात करें, जो ये है, ये बेसिकली जिनकी इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर है उनको एप्लीकेबल होता है। सो आई डोंट नो कितने लोग रहेंगे उसमें कैटेगरी में, बट अगेन एज ए अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने इसको जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 25% इन दैट इज ऑल्सो इन न्यू टैक्स रिजिम ओनली। ओके, then increase the limit of leave encashment of retirement of non-government salaried employees from INR 3 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज। हाँ, इसमें बहुत जरूरत थी, बिकॉज 3 लाख रुपए, बिकॉज इट वॉज जब ये अनाउंस किया था तो उस समय गवर्नमेंट की सैलरी बहुत कम होती थी, लेकिन अभी कंसिडरिंग द सैलरी और ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इसको जरूरत थी। सो गवर्नमेंट ने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो लीव इनकेशमेंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको 3 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक कर दिया है। ओके, नाउ टू अलाउ द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड डिडक्शन अप टू INR 15,000 फॉर फैमिली पेंशन अंडर न्यू रिजीम ऑल्सो। तो जैसे ऊपर जैसे हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ किया है, बट टू फर्दर प्रमोट दिस न्यू टैक्स रिजीम, गवर्नमेंट ने जो फैमिली पेंशन में है वहां पे 15,000 और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अलाउ किया है। उसके बाद द पेमेंट रिसीव फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय अग्निवीर कंट्रोल्ड इन अग्निपथ स्कीम 2022 इज प्रपोज टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस। तो आपको जो भी इससे फंड से पैसा मिलेगा दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। और आपको पता है जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे नाम चेंज कर रही है, शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं। तो अभी इसका लिस्ट नहीं देखा है, बट 80G में जो नेम स्पेसिफिक डिडक्शन थी कोई XYZ पर्सन के नाम पे, उन जो डिडक्शंस थी उन डिडक्शन को भी रिमूव करने का प्रावधान किया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट अगर आप कंपेयर करोगे तो जो अगर आपका टैक्स स्लैब अगर हायर टैक्स स्लैब है, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इंटेंशन अगर देखा जाए, इंटेंशन है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो गवर्नमेंट का ये है कि जो 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 बचत या जो आपकी सेविंग बेस्ड जो स्ट्रक्चर होता था उसको गवर्नमेंट धीरे धीरे डिस्करेज कर रही है, और वो ये बोल रही है कि आपकी जो इनकम है आपको इतना टैक्स देना है, बाकी आपको जो इंश्योरेंस है, आपको बचत है, आपको घर खरीदना है, दैट इज योर मैटर, आप इसको देखो आपको कैसे करना है। बट न्यू टैक्स रिजीम मतलब हम आपको सर्टेन डिडक्शन अलाउ करेंगे, उसके बाद आपका इंश्योरेंस है, मेडिकल है, घर है, उसका कोई अलग से नहीं। सो दैट इज योर लुकआउट, आपको कैसे देखना है। ओके, उसके बाद में जो लास्ट है, जो अदर प्रोविजन है, जो अनाउंसमेंट है उसमें allowing carry forward of losses on strategic disinvestment including that of IDBI। तो यहाँ पे बिकॉज IDBI का अभी तक चल रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पे अगर कोई लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ये बजट में अलाउ किया है। इट इज ऑल्सो प्रपोज टू मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये भी अनाउंस किया है। देन प्रोवाइडिंग ट्रिपल स्टेटस टू अग्निवीर फंड। इसके बाद में ये जो मेजर अनाउंसमेंट थे उसमें बाद में फिर है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद में इस बजट में गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉरगॉन अबाउट ₹35,000 करोड़ एनुअली।
इसके बाद में 2-3 और मेजर अनाउंसमेंट हैं। भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे जो पुरानी जो पांडुलिपि होती है, जो पुरानी होती हैं, उनको गवर्नमेंट क्या है डिजिटाइज फॉर्मेट में लाने के लिए उनके लिए एक रिपोजिटरी बना रही है। फिर सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो पुअर प्रिजनर्स होते हैं, जहाँ पे उनके बेल के लिए पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट करेगी, सो दैट इस तरह के प्रिजनर वो बेल लेके बाहर आके वो भी एक बार अपनी लाइफ को एक आम नागरिकों की तरह स्पेंड कर सके। फिर उसके बाद में फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ ₹7,000 करोड़। तो यहाँ पे अगेन एक 7,000 करोड़ का एक बजट अलोकेशन किया गया है ई कोर्ट्स के लिए, दैट इज फेज 3। ओके, तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बजट में, बट इसके जो की हाइलाइट्स थे उस बजट में मैंने पूरी तरह कोशिश की है कि उसको कवर किया जाए और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया जाए। होप आपको ये वैल्यू एडिशन करेगा आपके एज ए जनरल नॉलेज में, और अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।